Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our 6th chapter, that is the 100 dresses part 2, okay? And in today's video we will continue this chapter, so let's begin. Maddie could say nothing. Okay, so in the last video we were reading that Maddie and Peggy, they come to know that Wanda Petronsky has left the school and now she will move to another city, to another school. Okay, so now Maddie and Peggy, they both decide that they will go to Wanda Petronsky's house और वो Wanda Petronsky से मिलेंगे और उसको बताएंगे कि उनका इंटेंशन कभी भी ये नहीं था to hurt her feelings. Okay, so वो Wanda Petronsky से मिलने जा रहे हैं और जो Peggy है, she is giving her own logics. Okay, she is defending herself और वो क्या कह रही है कि मैंने कभी भी वोंडा पेट्रोस्की को फॉरेनर कह के उसका मजाक नहीं बनाया और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया था. ओके, सो शी हैज़ हर ऑन लॉजिक. लेकिन जो मैडी है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है. उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसने कभी भी वोंडा पेट्रोस्की को सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी भी पैगी को नहीं कहा टू स्टॉप टीजिंग वोंडा पेट्रोस्की. ओके, सो मैडी पैगी की बातें सुन रही है बट शी इज़ अनेबल टू से एनीथिंग. All she hoped was that they would find Wanda. So मैडी के माइंड में there was only one thing was there. उसको सिर्फ ये इस चीज़ की होप थी कि वोंडा पेट्रोस्की उसको मिल जाए. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was and please not to move away and everybody would be nice. और जो मैडी है वो वोंडा पेट्रोस्की से क्यों मिलना चाह रही थी एक लास्ट टाइम? Why? Because she wanted to tell her that they were so sorry that they had picked on her. What is picked on her? Pick on means to make some of anyone. Okay, so मैडी जो थी फाइनली वो ये चीज़ अपोलोजाइज करना चाहती थी, वो इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती थी वोंडा पेट्रोस्की को, that they hurt her feelings and how wonderful the whole school thought she was. और साथ ही वो वोंडा पेट्रोस्की को ये बताना चाहती थी that all her drawings were so amazing, they were so beautiful and now the entire class, in fact the entire school जो था वो ये सोच रहा था that वोंडा पेट्रोस्की is such a talented girl, she is such a wonderful girl. और वो साथ में ये भी कहना चाहती थी that please do not move away and everybody would be nice. Okay, so जब उसको पता चलता है कि because of their bad behavior जो वोंडा पेट्रोस्की है उसने डिसाइड किया है that she will leave the school, she will move to another school, to another city. So मैडी ये चाहती थी कि वो एक बार उसको सॉरी बोले और एक बार उससे रिक्वेस्ट कर पाए कि प्लीज़ डोंट गो अवे, now everyone will be nice to you, now no one ever will tease you, now no one ever will hurt you. Okay, She and Peggy would fight anybody who was not nice. और अब मैडी जो है उसके माइंड में इतनी ज़्यादा इतनी डीप ये बात आ चुकी है कि वो यहाँ तक कहने को रेडी थी कि अगर स्कूल में अगर कोई भी उसके साथ अब नाइस नहीं होता है, कोई भी वोंडा पेट्रोस्की के साथ एक प्रॉपर वे में बिहेव नहीं करता है, सो उस बच्चे के साथ पैगी और जो मैडी है दे विल फाइट हर. ओके, सो वो दोनों उस बच्चे को बोलेंगी that why are you behaving like this with Wanda Petronsky. The two girls hurried on. So all these things were there in Maddie's mind. So now जो दोनों ही girls हैं, both the girls were hurrying to the way to meet Wanda Petronsky. They hoped to get to the top of the hill before dark. So उनके माइंड में एक ही बात थी कि before it's getting dark, अंधेरा होने से पहले ही हम वहाँ तक पहुँच जाएं. I think that's where the Petronskys live, said Maddie, pointing to a little white house. So अब जब फाइनली वो बॉगिंस हाइट्स पे पहुंच गए हैं, अब वो ढूंढ रही हैं कि वोंडा पेट्रोस्की का घर कौन सा है. सो फाइनली जब वो एक लिटिल हाउस के सामने आ गए थे, सो वहाँ आने के बाद मैडी कहती है उस लिटिल हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए that I think this is the house of Petronskys, I think this is the place, this is the house where the Petronskys live. Okay, Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. अब वो जो लिटिल वाइट हाउस था वो कैसा था? उस हाउस के बाहर जो गार्डन था, उस गार्डन में जो पाथवे था, उस पाथवे पे क्या था? दोनों साइड में विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास जो था वो स्टक अप था. व्हाट इज विस्प? विस्प मीन्स स्मॉल बंच. ओके, सो पाथवे क्या होता है? जो गार्डन के बीच में जो चलने के लिए रास्ता होता है, दिस इज कॉल्ड पाथवे. सो उस वाइट हाउस के सामने
सामने जो छोटा सा गार्डन था, सो गार्डन पे जो पाथवे बना हुआ था उसके दोनों ही साइड पे क्या थे, बंचेस ऑफ ओल्ड ग्रास के वहाँ पे रखे हुए थे। और वो जो बंच थे वो कैसे लग रहे थे, दे वर लुकिंग लाइक थिन किटन्स। ओके, The house and its sparse little yard looked shabby but clean. So वो जो little white house था और जो little yard था उसके सामने, what is sparse? Sparse means small. Okay, so वो जो little white house था उसके सामने एक small yard था, we can say small ground, small garden था। वो कैसे लग रहे थे, they were looking shabby but clean. Shabby means in a poor condition. So वो well maintained नहीं था, ना तो वो house well maintained था, neither the house nor the garden, or we can say the yard was well maintained, but they were clean. Okay, so they were in poor condition but they were clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. So वो घर देखते ही मैडी को क्या याद आ जाता है, उसे वांडा पेट्रोंस्की की वही ड्रेस याद आ जाती है जो कि वो डेली स्कूल में पहन के आया करती थी। और वो ड्रेस कैसी थी, इट वॉज अ फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। और ऐसा मैडी को क्यों याद आता है, बिकॉज वांडा पेट्रोंस्की की जो ड्रेस थी दैट वॉज ऑल्सो शैबी बट क्लीन। ओके, सो वी हैव रेड अर्लियर कि जो वांडा पेट्रोंस्की डेली ड्रेस पहन के आया करती थी वो प्रॉपरली आयरन नहीं हुआ करती थी, बट स्टिल वो हमेशा क्लीन रहा करती थी। ओके, सो जो कंडीशन वांडा पेट्रोंस्की की ड्रेस की होती थी, सेम कंडीशन वॉज देयर इन द वाइट हाउस एंड इन द यार्ड। सो उस घर को और यार्ड को देख के मैडी को अचानक से वांडा पेट्रोंस्की की ड्रेस याद आ जाती है, बिकॉज बोथ वर शैबी बट क्लीन। ओके, देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। अब जब वो उस वाइट हाउस में पहुंच गए हैं, तो जब वो जाते हैं यार्ड में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सो दोनों को फील होता है कि देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ। ओके, इसका मतलब उन दोनों को लग गया था कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, घर जो है वो खाली है। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। सो इनको डाउट तो हो गया था डैट मे बी देयर इज नो वन इन द हाउस, बट स्टिल जो पैगी थी शी नॉक्ड firmly on the door but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. So जब फ्रंट डोर पे नॉक करने पे किसी ने आंसर नहीं दिया, सो दोनों ही गर्ल्स क्या करती हैं, they went around to the backyard. तो वो घर के जो बैकयार्ड था, जो बैक एंट्री थी, बैक साइड पे जाती हैं और वहाँ पे अगेन they knocked, still there was no answer. But still there was no answer. There was no doubt about it. तो अब इस बारे में कोई डाउट नहीं था कि जो पेट्रोंस्की फैमिली है वो यहाँ से जा चुकी है, घर में अब कोई भी नहीं था। The Petronskis were gone. So now it was very clear that no one was there in the house and it was clear that Petronskis were gone already. How could they ever make amends? So अब जब इन दोनों गर्ल्स को पता चलता है कि वांडा पेट्रोंस्की तो यहाँ से जा चुकी है, now they will never get a chance to meet वांडा पेट्रोंस्की, now they will never ever be able to apologize her. Okay, सब उनको क्या लगता है कि how will we be able to make amends? Make amends means to compensate for a wrong doing. Okay, सब दोनों को एक चीज रियलाइज हो गई थी that they were doing so wrong when they were teasing her, when they were hurting her feelings. It was such a wrong deed. सब दोनों को अपनी ये बात पता है that हमने कितना गलत काम किया है और इसी के लिए वो वांडा पेट्रोंस्की से एक बार मिलकर सॉरी बोलना चाहती थी। लेकिन जब दोनों का पता चल जाता है that वांडा पेट्रोंस्की has left already, so now they were thinking that अब उनको कभी भी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो चीज़ों को कंपनसेट कर पाएँ, जो उन्होंने गलत काम किया है उसको फिर से ठीक कर पाए, अपोलोजाइज कर पाए, एक बार वो सॉरी फील कर पाए, सॉरी बोल पाए। They turned slowly and made their way back down the hill. So जब वो इस चीज़ से श्योर हो जाती हैं कि no one was there in the house, the Petronskis family has already left, they have already moved. तो वो दोनों फिर क्या करती हैं, वो उनको वापस अपने घर जाना था, सो वो दोनों ही बहुत ही स्लोली, बहुत ही सैडली फिर से उस हिल से नीचे उतरना स्टार्ट हो जाती हैं। Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, so again अब दोनों को पता है कि वांडा पेट्रोंस्की जा चुकी है, वो कभी भी सॉरी नहीं बोल पाएंगे। सो अगेन जो पैगी है वो फिर से अपने लॉजिक्स दे रही है, एज इफ वो अपने आप को ही समझाने की ट्राई कर रही है। अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है वेल जो वांडा पेट्रोंस्की है वो जा चुकी है यहाँ से, शी हैज़ लेफ्ट, शी हैज़ मूव टू अनदर सिटी, सो नाउ देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू। आगे वो कहती है बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी
probably was getting good ideas for her drawing. So अब Peggy is having one more logic. Okay, अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि जब मैं वोंडा पेट्रोन्स्की से पूछा करती थी about her dresses, that how many dresses are there in her closet, और वो कहा करती थी that I am having 100 dresses. Okay, so उसके बाद पैगी क्या कहा करती थी, she used to ask वोंडा पेट्रोन्स्की to describe some of her dresses. Okay, so हमने पढ़ा था earlier in the chapter कि वोंडा पेट्रोन्स्की अपनी ड्रेसेस को डिस्क्राइब भी क्या करती थी कि आई हैव वन ड्रेस ऑफ दिस कलर, आई हैव वन मोर ड्रेस दैट इज ऑफ दिस कलर, ऑफ दिस फैब्रिक. सो इस तरह से वो अपनी ड्रेसेस को डिस्क्राइब भी क्या करती थी. सो सेम चीज़ जो पैगी रेफर करती भी कहती है कि मैं वोंडा पेट्रोन्स्की से पूछा करती थी और वो अपनी ड्रेस को डिस्क्राइब किया करती थी, और इसी तरह से शी वॉज गेटिंग द आइडिया अबाउट हर ड्राइंग्स, यानी कि जिस तरह से वो अपनी ड्रेसेस को डिस्क्राइब करती थी उसी से उसको आइडिया मिला कि आई विल ड्रॉ 100 ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और उसी तरह से उसने वो 100 ड्राइंग्स बनाई थी. शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. तो पैगी यहाँ तक बोल रही है कि अगर हम ये ड्रेसेस गेम नहीं खेलते, अगर मैं उससे ये क्वेश्चंस नहीं पूछती और उसको अपनी ड्रेसेस डिस्क्राइब करने के लिए ना कहती, सो इट वाज पॉसिबल कि वोंडा पेट्रोन्स्की जो था वो ये कॉन्टेस्ट शायद कभी जीत ही नहीं पाती. ओके, सो स्टिल पैगी हैज़ हर ऑन लॉजिक्स, her own arguments. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. So जो मैडी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट है. She is still feeling so bad. Okay, so जो पैगी ने बात बोली कि जो वोंडा पेट्रोन्स्की ये कॉन्टेस्ट जीती है, इसमें कहीं ना कहीं पैगी का भी रोल है, क्योंकि पैगी ने हमेशा उससे यही बात पूछा करती थी और उससे अपनी ड्रेसेस डिस्क्राइब करने के लिए कहा करती थी. सो जब वोंडा पेट्रोन्स्की ड्रेसेस डिस्क्राइब किया करती थी उसी टाइम मे बी शी वॉज getting the idea of different dresses of different 100 dresses. Okay, so मैडी ने जब ये बात सुनी, so वो इस आइडिया के बारे में बहुत देर सोचती है कि ओके इज इट पॉसिबल, और उसको ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि वो सोचती है कि अगर कहीं ना कहीं उनका रोल है इस चीज़ में कि उनकी वजह से वोंडा पेट्रोन्स्की फाइनली कॉन्टेस्ट जीत पाई, सो मे बी वो इतना बैड फील ना करे. ओके, सो मैडी इज एक्चुअली फीलिंग वेरी बैड. वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है. शी इज़ रिग्रेटिंग अ लॉट, और उसको लग रहा है कि अगर कहीं ना कहीं उसका रोल है कि उसकी वजह से वोंडा पेट्रोन्स्की ये कॉन्टेस्ट जीत पाई है, तो शायद उसको इतना बैड वो फील ना करे. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. बट दैट नाइट जो मैडी है शी वॉज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली. शी थॉट अबाउट वोंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस एंड शी हैड लिव्ड इन. सो अभी भी मैडी के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी. शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वोंडा and about her faded blue dress and about the little house where she used to live. Okay, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और इसके साथ ही मैडी एक और बात सोच रही थी. She was thinking about the drawing of 100 different dresses, the drawings that were all lined up in the classroom. Okay, so मैडी जो है she is unable to remove this idea, the idea of वोंडा पेट्रोन्स्की from her mind. She is still thinking only about Wanda Petronsky, right? At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. So Maddie is really unable to sleep. So finally वो क्या करती है? Finally Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands. Okay, so वो बहुत ज़्यादा परेशान है. She is so much upset and troubled. So she is unable to sleep. So finally वो बैठ जाती है और अपने forehead को वो tightly hold कर लेती है अपने hands में, और वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. और इससे पहले मैडी ने किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा था. इससे पहले वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा ट्रबल वो कभी भी नहीं हुई थी. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. ओके, सो मैडी इज थिंकिंग वेरी हार्ड. शी वॉज थिंकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग फाइनली देयर वॉज अ कंक्लूजन इन हर माइंड. फाइनली वो अपनी थिंकिंग के एंड पे आ जाती है. बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली वो अपने माइंड में एक डिसीजन कर लेती है. अपनी थिंकिंग के वो कंक्लूजन पॉइंट पे, एक एंडिंग पॉइंट पे वो आ जाती है.
She was never going to stand by and say nothing again. So after a lot of thinking, what was the conclusion? क्या ending थी उसके thinking की? Finally there was a decision in her mind, and that decision was that from now on Maddie was never going to stand by and say nothing again. Okay, so इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे ड्रेसेस गेम में मैडी का क्या पार्ट था? मैडी की क्या गलती थी? मैडी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो चुपचाप खड़े हुए देखती रहती थी। उसको गेम अच्छा नहीं लगता था। जिस तरह से पैगी वोंडा को हर्ट करती थी, उसको टीज करती थी, ये चीज़ मैडी को अच्छी नहीं लगती थी। बट स्टिल उसने कभी भी वोंडा को सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी भी पैगी को मना नहीं किया। सो दैट वॉज हर मिस्टेक, यही उसकी गलती थी। सो फाइनली वो डिसाइड करती है कि आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अपने सामने कुछ गलत होते हुए देख रही है और फिर भी वो चुपचाप खड़ी है, कुछ कर नहीं रही। ऐसा वो कभी भी नहीं करेगी। If she ever hurt anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. So finally वो decide करती है that from now on, if ever, okay, वो decide करती है if ever she hurt anybody picking on someone, okay, so अब कभी उसने अगर देखा that someone is teasing other person, someone is making fun of other person just because they were funny looking or they were having some strange name or some weird name, so वो decide कर चुकी थी that she would speak up. वो अब चुप नहीं रहेगी, वो केवल स्टैंड बाय मोड में नहीं रहेगी, but she will speak up. Okay, इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और वो यहाँ तक भी डिसाइड कर लेती है कि अगर मेरे बोलने से अगर पैगी मुझसे नाराज़ हो जाती है, पैगी अपनी अगर फ्रेंडशिप मुझसे एंड कर देती है, तो मुझे उस चीज़ की भी केयर नहीं है। स्टिल आई विल स्पीक। मैं अपने सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखूंगी, अपने सामने मैं नहीं देखूंगी डैट समवन इज मेकिंग फन ऑफ अदर पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स और जस्ट बिकॉज ऑफ हर और हिज नेम। ओके, she had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. So finally वो ये decide करती है कि she was not having any option, there was no way for her कि वो Wanda के से एक बार मिल पाए, Wanda के साथ सारी चीज़ों को वो ठीक कर पाए। ओके, जो Wanda के साथ उसने गलत बिहेव किया कि उसने कभी Wanda को सपोर्ट नहीं किया, उस चीज़ को तो वो ठीक नहीं कर सकती थी। ओके, लेकिन आगे के लिए वो डिसाइड कर चुकी थी शी विल नेवर, कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी कि अपने सामने वो किसी दूसरे को इतना अनहैप्पी होते हुए देखे, इतना हर्ट होते हुए वो कभी भी नहीं देखेगी। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. So this was the decision that was there in Maddie's mind. Okay, so बहुत ज़्यादा सोचने के बाद Maddie finally इस conclusion पे पहुँच जाती है। Now it was Saturday and Maddie spent the entire afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky, and finally both the girls decided that they will write a letter to Wanda. They were unable to meet her, but they decided that now they will write a letter to Wanda. Okay, it was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. So in that letter they decided that they will write about the contest and they will inform Wanda that she had won the contest. They told her how pretty her drawings were, और उस लेटर में उन्होंने ये भी मेंशन किया that all her 100 drawings were equally beautiful, they were amazingly beautiful, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और साथ में उन्होंने ये भी पूछा दैट द प्लेस जहाँ वो अब रह रही है, द न्यू प्लेस। ओके, सो क्या उस प्लेस को वो पसंद कर रही है और जो उसके न्यू टीचर हैं, जो उसका न्यू स्कूल है, वो क्या सब उसे अच्छा लग रहा है, उसकी न्यू प्लेस, न्यू टीचर, न्यू स्कूल जो है वो कैसे हैं। ओके, सो इट वॉज लाइक अ फ्रेंडली लेटर. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. Okay, तो जब उन्होंने लेटर लिखना स्टार्ट किया था, सो किस पर्पज से उन्होंने स्टार्ट किया था? टू से सॉरी. ओके, सो वो दोनों अपोलोजाइज करना चाहते थे. ओके, सो सॉरी बोलने के लिए उन्होंने वो लेटर लिखा था, बट दे एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. ओके, सो वो एग्जैक्टली
डायरेक्टली सॉरी तो नहीं लिख पाए, सो उन्होंने उस लेटर को एज ए फ्रेंडली लेटर लिखा था. इट वॉज द काइंड ऑफ लेटर दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड. ओके, और एट द एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. They mailed the letter to Boggins Heights, writing, "Please forward on the envelope." Okay, so now they have written one letter for Wanda Petronsky, but Wanda Petronsky has already moved from Boggins Heights. Okay, so उनका लिखा लेटर अब Wanda Petronsky तक कैसे पहुंचेगा? So उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा और जो एनवलप था जिसके अंदर उन्हें उस लेटर को रखा, उस एनवलप पे उन्होंने एड्रेस तो कहाँ का लिखा, बॉगिन्स हाइट्स का लिखा, जहाँ पे पेट्रोन्स्की फैमिली पहले रहा करती थी. लेकिन उनको पता था दैट दे हैव मूव्ड ऑलरेडी फ्रॉम देयर, सो उन्होंने एक चीज़ और लिखी, प्लीज़ फॉरवर्ड. ओके, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर जाएगा, सो उस एड्रेस पे तो पेट्रोन्स्की फैमिली नहीं है, सो वो अपने आप उस लेटर को वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ वो अब हैं. ओके, उनके जो न्यू एड्रेस है वहाँ पे वो लेटर अपने आप पहुँच जाएगा. सो दिस वॉज द आइडिया इन देयर माइंड एंड दे एक्चुअली रोट अ लेटर टू वंडा पेट्रोन्स्की. दे वॉन्टेड टू से सॉरी, they wanted to apologize, but they were unable to say sorry and they ended up like a friendly letter. Okay, days passed and there was no answer, but the letter did not come back. Okay, so now after writing the letter, after posting that letter, so many days passed, but still there was no answer, but the letter did not come back. But one more thing was there कि वो जो letter था वो वापस लौट के नहीं आया. Okay, it means अगर वो letter उस एड्रेस पे नहीं पहुंचता प्रॉपरली, जो पेट्रोन्स की फैमिली है वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाता, उनके न्यू एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता, तो वो लेटर वापस से लौट के आ जाता, लेकिन वो लेटर कम बैक भी नहीं हुआ. सो इसका क्या मतलब था, मे बी वांडा पेट्रोन्स्की हैज रिसीव्ड द लेटर. ओके, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. सो अगर वांडा को लेटर मिल चुका है उसके बाद भी उसने आंसर क्यों नहीं किया, उसने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने वापस से लेटर क्यों नहीं लिखा. सो मैडी और पैगी के माइंड में क्या था, वो सोच रही थी दैट मे बी वांडा पेट्रोन्स्की सो हर्ट, शी इज सो एंग्री that she will never ever answer that letter. Okay, you could not blame her. तो साथ में उनको ये भी पता था कि अगर वांडा इतनी ज़्यादा हर्ट है, अगर वो इतनी एंग्री है कि हमने लेटर लिखा है उस लेटर को वो रिप्लाई भी नहीं कर रही, सो इस बात के लिए वी कांट ब्लेम हर. ब्लेम मीन्स फाइंड फॉल्ट. ओके, सो उनको पता था कि अगर ऐसा है कि वो हमारे लेटर का रिप्लाई नहीं कर रही, सो इन दिस वो उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज या इट इज़ आर मिस्टेक. हमने उसको टीज किया था, हमने उसको हर्ट किया था, it were we who used to make fun of her. Okay, so if she is angry, if she is hurt that she is not replying back our letter, if she is not writing back to us, then obviously it is not her mistake, we can't blame her. Okay, so now both the girls have this feeling that yeah, they were wrong, they have done very wrong with Wanda Petronsky. Okay, so now what is there in the chapter we will come to know in the next video. So see you in the next video. Thank you.